Good evening. We'll talk about the Indian Evidence Act today, which is part of your syllabus. We have already studied criminal law, Indian Penal Code, and the Code of Criminal Procedure. Now, when we talk about the criminal law, Indian Evidence Act is a part of the criminal law. It's an important part of a criminal law because Indian Evidence Act, which is also called the Saksh in Hindi, or we talk about the evidences which forms an integral part by which the offenders are punished, and the quantum of the punishment is provided on the basis of the crime which has been committed and also the evidences which are presented to the court. And on the presenting of such evidences in the court, the judge specifically declares the culprit to be punished, not punished, or sufficiently punished. Now, what we talk about is evidence. When we talk about evidence, we will have to see what do you mean by evidence. Evidence can be anything. It can be a fact, it can be a weapon which has been used to commit a crime, it may be a person who has committed the crime, a person who may be present in there during the crime, an eyewitness who has seen those things. If nothing is there, it can be based on what we call the circumstantial evidences, which proves that the person may have committed the crime, though it has been suggested that the person or the eyewitnesses, if not present, that is not a good form of evidence. But we have seen some of the judgments in which person are prosecuted on the basis of circumstantial evidences also. Moving forward, when we talk about fact, fact means and includes anything, state of things, or relation of things capable of being perceived by the senses, any mental condition of which any person is conscious. If we look into the illustration that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact. So now everything which is happening or which has happened is said to be a fact. Like there was a Janta curfew on 22nd of March. That is a fact. After that, the state of India or the state of Jharkhand is locked down and whole of India has been locked down is a fact. So now these are the things, state of things or relation of things. Now, if the malls are closed because there is a complete lockdown in India, that is also a fact. तो ये फैक्ट है और ये फैक्ट ही रहेगा. ये बाद में अगर किसी केस में इसको हम यूज़ करेंगे तो इसको हमको अलग से किसी चीज़ को प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस दैट इज़ अ फैक्ट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फैक्ट दीज फैक्ट्स डिड नॉट बी प्रूव्ड. सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ. मुझे ये प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है कि सन राइजेज इन द ईस्ट. Talking about fact and fact in issue. When fact you have already seen, fact in issue. When we talk about fact in issue, that is what are the relevant things for the case is fact in issue. अगर आपको ये प्रूव करना है कि आप 2 अप्रैल को कॉलेज नहीं आए थे या यूनिवर्सिटी नहीं आए थे तो कैसे प्रूव कीजिएगा. तो ये लॉकडाउन था, इंडिया में लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, तो मैं कॉलेज नहीं आया था या यूनिवर्सिटी ही बंद था. नाउ दैट इज़ यू हैव टू प्रूव व्हेन यू हैव कमिटेड अ क्राइम एंड दैट पर्टेन्स टू दिस कि आप यहाँ पे नहीं थे या फिर आप अगर रांची के नहीं हैं और आप घर चले गए हैं और आपको प्रूव करना है कि आप रांची में उस दिन नहीं थे, देन दैट इज़ अ फैक्ट इन इशू. ऑल द थिंग्स, लॉकडाउन, स्टेट में बंद था, ऑटो नहीं चल रहा था, यूनिवर्सिटी बंद था, दैट बिकम्स अ फैक्ट इन इशू विच वॉज प्रीवियसली अ फैक्ट. बट जब आपके केस
में अब ये यूज़ होने लगा या फिर आपके केस के ये रिलेवेंट हो गया, रेलेवेंट हुआ, तो उसको हम लोग बोलेंगे दिस इज़ अ फैक्ट इन इशू। नाउ कमिंग टू हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस मतलब किसी चीज़ को सुना हुआ साक्ष्य। क्या किसी बात को सुन के हम किसी और को जाके ये चीज़ बताएंगे तो क्या वो मान्य होगा, साक्ष्य मान्य होगा या नहीं? दैट इज़ कॉल्ड द हियरसे। हियरसे का मतलब होता है किसी का सुना हुआ बात। तो किसी का सुना हुआ बात पे क्या हम भरोसा कर सकते हैं और उसको जाके अगर हम कोर्ट में बोलते हैं तो क्या वो माना जाएगा? तो हियरसे एविडेंस इज एविडेंस विच हैज़ बीन सेड दैट इट इज नॉट to be believed in the court because that is an hearsay evidence. Hearsay evidence सुना हुआ बात। आप अगर कोर्ट में जाके बोलते हैं कि मैं रास्ते से जा रहा था और वहाँ पे एक लड़का आया और उसने कहा कि मोहन ने एक खून किया है, तो क्या ये कोर्ट ये बात को मान लेगी? नहीं, कोर्ट इस चीज़ को नहीं मानेगी, क्योंकि आपने किसी और से सुना है और किसी और को बात को आप जाके कोर्ट में नहीं रख सकते हैं जब तक कि आपने उस चीज़ को खुद होते हुए नहीं देखा है। अगर आपने खुद होते हुए देखा है, आपने परसीव किया है सेंसेस के थ्रू, हमारे पास 5 सेंसेस हैं, उसमें से किसी भी तरह से आपने सेंस किया है, तो हम मान सकते हैं कि आप डायरेक्ट एविडेंस दे रहे हैं। Hearsay evidence is not an admissible form of evidence. Moving forward, oral evidence. What is oral evidence? आप अगर कोई बात बता रहे हैं कोर्ट को, दैट इज सेड टू बी एन ओरल एविडेंस, और ये सबसे बढ़िया एविडेंस माना जाता है किसी भी कोर्ट में। आई विटनेस इज़ ऑल्सो एन ओरल विटनेस, क्योंकि जब जो भी आपने देखा है उसको आप कोर्ट में जाके बोलिएगा। तो आई विटनेस अगर हैं आप किसी पर्टिकुलर क्राइम के, तो आप वो जाके कोर्ट में बोलिएगा और उसको हम लोग मानेंगे दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ आई विटनेस एंड दैट इज़ ऑल्सो एन ओरल एविडेंस। Fact in issue. The expression fact in issue means and includes any fact from which, either by itself or in connection with other fact, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. तो आप लोगों को पहले ही बताया, तो यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है जो कि हमने बात किया था, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है, और दूसरा कि जो ये अगर एग्जिस्ट नहीं भी करता है। नहीं भी करने का मतलब अगर आप बोलते हैं कि दिसंबर में आम फलता है, नाउ दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग इज़ कि आम नहीं फलता है दिसंबर में, बट अब कुछ अगर हाइब्रिड है और वो अगर फलता है, आम फला है, दैट कैन बी सेड कि नॉन एग्जिस्टेंस एंड एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस दैट इज़ अगेन समथिंग। अगर आप ये बोलते हैं कि जून में आम से कोई मर्डर हुआ क्योंकि उसमें जहर मिलाया हुआ था, दैट इज़ बिलीवेबल कि हाँ ठीक है, जून में आम मिलता है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं दिसंबर में कि आम मिलता है, तो पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आम था, आम मिला था और उसमें जहर मिलाया गया। तो नाउ दैट इज़ थिंग्स विच इज़ कॉल्ड द फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू, जो हम लोगों ने अभी बात किया है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अभी हम लोग बात कर रहे थे, मीन्स द एविडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज प्रिजम्पटिव एविडेंस। अब अगर आप ये इलस्ट्रेशन देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि अगर हमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है, मोस्टली हमें कोई भी क्राइम के लिए डायरेक्ट एविडेंस मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो हम लोग कैसे किसी एविडेंस को मान के चलते हैं कि ऐसा हुआ होगा? दैट इज़ अ सीरीज ऑफ थिंग्स, chain of events which may have happened, that is called the circumstantial evidence. हम मान के चलते हैं कि ऐसा हुआ होगा। एक रूम है जिसमें एक ही दरवाज़ा है और बाकी सारे खिड़की बंद हैं जो कि खुलते नहीं हैं, जिसमें से कोई आ नहीं सकता है। तो हम अब प्रिजम्पशन ये लेके चलते हैं कि जो भी मर्डर किया होगा उस रूम के अंदर, वो दरवाजे से ही आया होगा, क्योंकि और कोई जगह से उसका आना पॉसिबल नहीं था, जब तक कि ये डिफेंस ये प्रूव कर दे कि एक जो खिड़की है वहाँ से कोई आदमी आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो पैनल लगा हुआ था उसको खोला जा सकता है। नाउ दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट अगर उस रूम में कोई खिड़की नहीं है और सिर्फ दरवाज़ा है, तब हम लोग मान के चलेंगे कि जो भी मर्डर किया होगा वो उस दरवाजे से ही आया होगा। नाउ बिलीविंग वी डोंट हैव एन ओरल एविडेंस, वी डोंट हैव एन डायरेक्ट एविडेंस, अब उसके अभाव में हमको ये पता चलेगा कि दैट पर्सन हैज़ कम थ्रू द डोर एंड ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर। सो नाउ बेस्ड ऑन दैट कि एक इंसान ने या सीसीटीवी फुटेज में उसका
फुटेज आया है जो कि देखा गया है कि वो उस रूम से निकल रहा है, देयर कैन बी प्रिजम्पशन दैट ही मे हैव कमिटेड द क्राइम। मे इसलिए क्योंकि we don't have a direct evidence or oral evidence that he has surely committed that crime. So now when we have this sort of situation, it is not proved beyond reasonable doubt, क्योंकि हम यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ये प्रूव कर रहे हैं कि ही मे हैव कमिटेड द क्राइम। ओरल एविडेंस नहीं है तो हम यहाँ पे सिर्फ जान पाएंगे कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एंड ऑन दैट बेसिस वी कम टू सी दैट पर्सन हैज़ only been committed the crime. That is only an presumption. It is not a final thing that he must or he shall have committed that particular crime. Primary and secondary evidence. Primary evidences are those evidences in which, or the primary documents or primary evidences are those type of documents or evidences which are first hand. Like say primary evidence can be said that if you are asked to provide your Aadhaar card, you do have a printout of your Aadhaar card. The printout is a form of secondary thing, and maybe what you have received through the post is a primary evidence. तो अगर आपके पास किसी चीज़ का प्राइमरी एविडेंस है और आप सेकेंडरी एविडेंस देते हो, तब आपको पूछा जाएगा कि प्राइमरी एविडेंस दिखाओ। जैसे कि आप कॉलेज में जाते हो, एडमिशन लेते हो, एडमिशन के टाइम पे आपने फ़ोटो कॉपीज सबका जमा करते हो आप, लेकिन एडमिशन के काउंसलिंग के टाइम में आपको बुला के सारा जो भी आप जमा किए हो उसका ओरिजिनल दिखाने को कहा जाता है। दैट मे बी टर्म्ड एज अ प्राइमरी एविडेंस, एंड द फोटोस्टेट ऑफ इट कैन बी सेड टू बी अ सेकेंडरी एविडेंस। वैसे ही अगर ड्राइविंग लाइसेंस का आप बात करो तो ड्राइविंग लाइसेंस इज़ द प्राइमरी, जो आपका ओरिजिनल है वो प्राइमरी एविडेंस है। और दूसरा जो अभी आप फोटोस्टेट देते हो फॉर टेकिंग फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सिम या फिर कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जहाँ पे आपको अपना आईडी प्रूफ देना पड़ता है, दैट इज़ द सेकेंडरी एविडेंस। दो समटाइम्स दे कैन आस्क फॉर योर ओरिजिनल प्रूफ कि अपना ओरिजिनल प्रूफ दिखाइए, एंड दैट विल बी टर्म्ड एज प्राइमरी एविडेंस। Admission and confession. Now when we talk about admission and confession, admission is admitting to some of the things which has been said. जैसे एडमिशन मोस्ट ऑफ द टाइम सिविल केसेस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू कन्फेशन विच इज़ यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस। कन्फेशन किसी भी चीज़ के बारे में कबूलना कि हमने ये क्राइम को किया है, दैट इज़ कॉल्ड द कन्फेशन। ऑन द अदर हैंड एडमिटिंग इज़ मे और मे नॉट बी अ क्राइम। फॉर एडमिट ऑफ अ क्राइम मे नॉट बी अ कन्फेशन। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ मैंने क्राइम को किया, और सामने वाले ने ये पूछा कि आपने इस क्राइम को किया और आपने जवाब दिया हाँ, तो ये पहला जो मैंने कहा कि हाँ मैंने इस क्राइम को किया है, मैंने किसी को मारा है, दैट इज़ मोर ऑफ अ कन्फेशन। बट इफ़ द क्वेश्चन इज ऑलरेडी फ्रेम्ड और आपने सिर्फ हाँ या ना में जवाब दिया, दैट इज़ मोर ऑफ एन एडमिशन। सो इन क्रिमिनल लॉ confession is a more believable or a substantive form of an evidence as compared to admission, which is mostly used in case of civil cases where you admit particular thing or reject a particular thing which has been put up. The confession is a statement made by an accused person which is sought to be proved against him in a criminal proceeding to establish the commission of an offense, while admission usually relate to a civil transaction and comprise all statement amounting to admission defined in section 70. A confession is deliberately and voluntarily made, may be adopted as conclusive in itself of matter confessed, and admission is not conclusive proof of the matter admitted but may operate as an estoppel. जब हम लोग कन्फेशन का बात करते हैं क्रिमिनल लॉ में, अगर हम लोगों ने किसी चीज़ का या कोई भी एक्यूज़ ने किसी चीज़ का कन्फेस किया है, तो उसको पहले ये बताना पड़ता है कि आप जो कन्फेशन कर रहे हैं दैट इट विल बी used against you. आपने मूवीज़ में देखा होगा कि you have the right to remain silent and if you choose to speak then that will be used against you. That is a form of confession, क्योंकि आप अगर कुछ भी बोलते हैं उसको बाद में आप ही के खिलाफ या यूज़ किया जाएगा, that is a confession. लेकिन उससे पहले आप कोई भी चीज़ को कन्फेस करें तो उससे पहले आपको बताया जाता है कि आपको कन्फेस करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज you have been given the power under the Constitution of India that you have the right to remain silent, and even if you speak that will not be used against you if that is extracted through you from
बाई एनी थर्ड डिग्री मेथड। तो इसीलिए माना जाता है कि पुलिस को दिया हुआ बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है पुलिस आपको दबाव में वो बयान लिया गया हो। तो हम लोग कन्फेशन कहाँ पे कर सकते हैं? कन्फेशन हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कर सकते हैं, एंड दैट पर्सन हैज़ बीन रीजनेबली क्वालिफाइड टू एक्सेप्ट द कन्फेशन। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कन्फेशन? क्या कन्फेशन करने से हमको सीधे में ही उस क्राइम को मान लिया जाता है कि मैंने किया है और उसके लिए मेरे को सज़ा दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमने किसी चीज़ का कन्फेशन किया और हमने कहा कि हाँ मैंने ए को मारा है, ये सीधे से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बट मैंने अगर कन्फेस किया कि मैंने ए को एक चाकू से मारा और उस चाकू को मैंने इस नदी में फेंक दिया या जिस झाड़ी में फेंक दिया, और पुलिस जाके उस झाड़ी का छानबीन करती है और वो पर्टिकुलर नाइफ़ को खोज लेती है, जिसको वो फॉरेंसिक लैब में भेजती है, और उससे प्रूव होता है कि उसमें जो खून लगा हुआ था, जिसका मर्डर हुआ था वो है, और उसमें हैंडप्रिंट जो लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट जो लगा हुआ है वो मेरा लगा हुआ है। वहाँ से मेरे को प्रूफ मिल सकता है कि मैंने उस क्राइम को किया है। कन्फेशन करने के बावजूद भी प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने उस क्राइम को किया है। सिर्फ कन्फेशन के बेसिस पे किसी को भी क्राइम के लिए सज़ा नहीं दिया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट बिकॉज ही हैज़ सेड दैट आई हैव कमिटेड द क्राइम। ऑन द अदर हैंड, अगर हम एडमिशन का बात करें, सिविल केसेस में एडमिशन ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे हम इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि हमने ऐसा किया है, या उसको रिजेक्ट करते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है। तो एडमिशन ज़्यादातर यूज़ होता है सिविल केसेस में, और जहाँ तक कन्फेशन का बात है उसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्रिमिनल लॉ में। डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन जहाँ पे माना जाता है कि अगर कोई मर रहा हो और मरते हुए अगर वो कोई स्टेटमेंट देता है तो वो सही ही बोल रहा होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा कहा गया है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन इन सेक्शन 32 सब क्लॉज 1, यहाँ पे बोलते हैं कि अगर कोई भी मरते वक्त कोई भी स्टेटमेंट देता है तो उसको हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे। और डाइंग डिक्लेरेशन वो किसी को भी दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। इसका मतलब डॉक्टर को, नर्स को, पुलिस को, अपने घर वालों को, अनजान लोगों को, दोस्त को, राहगीर को, किसी को भी दे सकता है, और ये कोर्ट में मान्य होगा। ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये एक्सेप्शन होता है हेयर से एविडेंस का, क्योंकि हमने आपको हेयर से एविडेंस में बताया था कि हेयर से एविडेंस इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एविडेंस विच इज़ एक्सेप्टेबल in the court of law, but dying declaration is an exception to it, because dying declaration is acceptable as an evidence in the court of law. क्यों माना जाता है डाइंग डिक्लेरेशन? क्योंकि पहला कि कोई मरते वक्त झूठ नहीं बोलता है, और दूसरा चीज़ कि डाइंग डिक्लेरेशन अगर इनकन्सिस्टेंट नहीं है तो उसको माना जाएगा कि वो उसने सच ही बोला है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि कोई आदमी मर रहा है, कोई आदमी मर रहा है, जैसे कि हम लोग देखे थे इस निर्भया केस में, जब 16 दिसंबर के बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, सफदरजंग हॉस्पिटल में जब वो थी, तब वहाँ पे एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट आया जो कि उसका बयान ले रहा था। बयान में क्या ज़रूरी होता है? बयान देते वक्त उसको डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूरत होता है। फिटनेस सर्टिफिकेट क्या है? फिटनेस सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट है जिससे डॉक्टर ये बोलता है कि ये जो भी इंसान है वो डाइंग डिक्लेरेशन या अपना स्टेटमेंट देने के लिए ठीक है या नहीं, उसका मेंटल हेल्थ कैसा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एंटीबायोटिक से ब्रेन को सप्रेस कर दिया जाता है और थिंकिंग एबिलिटी को सप्रेस किया जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर ये सर्टिफिकेट देता है कि इस वक्त इसका दिमागी हालत ठीक है और ये भी जो भी बोलेगा या बोलेगी वो सही चीज़ बोलेगा, तब वो स्टेटमेंट लिया जा सकता है। निर्भया के केस में भी वो स्टेटमेंट लिया गया, डॉक्टर्स का फिटनेस सर्टिफिकेट भी था, और उसके बाद वो डाइंग डिक्लेरेशन दिया। डाइंग डिक्लेरेशन उस वक्त वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं था क्योंकि उसका मौत तय नहीं था, हो सकता था वो बच भी जाती। अगर बच जाती तो वो स्टेटमेंट आपका सेक्शन 161 सीआरपीसी में चला जाता, लेकिन चूंकि उसका डेथ हो गया वो आपका आ जाएगा सेक्शन 32(1) के अंदर, जो कि बोलते हैं हम डाइंग डिक्लेरेशन।
अब ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट होने का मतलब है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, आपको हेलुसिनेशंस होता है और आपको बहुत हाई डिग्री एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स के कारण क्या होता है कि आपका सोचने का क्षमता को कम हो किया जाता है। सोचने का क्षमता के कम होने के कारण आप देखिएगा कि डाइंग डिक्लेरेशन के टाइम में हो सकता है, एक ऐसा केस था जिसमें एक महिला थी जिसको बर्न हुआ था, शी हैड 90% बर्न्स, और वहाँ पे उनको बोला गया कि पहले पूछा गया कि आप कैसे जली, तो उसका पहली बार ये कहना था कि मेरे ऊपर मेरे इन लॉज ने केरोसिन डाल दिया और मेरे को आग लगा दिया। चूँकि वहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेट ठीक से नहीं लिया गया था, तो डॉक्टर को फिर से एक बार फिटनेस सर्टिफिकेट देने को कहा गया और फिर से वो सवाल उससे पूछा गया। यहाँ पे पूछा गया जब, तो उसने जवाब दिया कि मैंने खुद से पेरोसिन ऑयल डाला और खुद को आग लगा लिया। नाउ देयर इज़ अ मेजर इनकन्सिस्टेंसी इन द बोथ द स्टेटमेंट्स। ऐसे सवाल में हमने डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पिक एंड चूज़ है कि नहीं आपको ये स्टेटमेंट क्या कहते हैं दिया गया है और ये मान्य होगा। डाइंग डिक्लेरेशन के साथ सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन को हम क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं। बाकी जो भी विटनेस जो भी कुछ बोलता है उसको हम क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, एक्सेप्ट द डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होता है। बहुत लोगों ने कहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन को मान्य नहीं किया जाए बिकॉज दैट इज़ नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ एविडेंस, बट हमारे इंडिया में अभी भी इस एविडेंस को माना जाता है और हम मानते हैं कि अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन देता है उसके बेसिस पे क्या किसी को कन्विक्शन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सोल डाइंग डिक्लेरेशन। सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के भरोसे पे क्या हम उसको कन्विक्ट कर सकते हैं? उसका जवाब है हाँ, हम लोग किसी भी डाइंग डिक्लेरेशन के भरोसे में या उसको मान के उसको कन्विक्ट करार दे सकते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है कि अगर कोई भी चीज़ को हमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है या प्रूव करना है, देन इट शुड बी अ बर्डन ऑफ प्रूफ। मतलब किस पे ये जिम्मेदारी है कि वो प्रूव करना होगा कि उसने क्राइम को किया है। जनरली हमारे क्रिमिनल लॉ में ये काम प्रोसिक्यूशन का होता है, जिसको प्रूव करना पड़ता है कि द क्राइम हैज़ बीन कमिटेड बाय द पर्सन हु इज़ द अक्यूज्ड। अगर हम इसमें सफल होते हैं, इफ़ आई कैन प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट that the person has committed the offense, the burden of proof is on the prosecution to prove it beyond reasonable doubt that the person has committed the offense. If the prosecution cannot prove that thing beyond reasonable doubt, he or she may not be prosecuted, he should not be convicted for the offense. On the other hand, defense क्या prove करने का कोशिश करेगा? That person has not committed the crime. एक्सेप्शन इन द रेप केसेस में प्रोसिक्यूशन को ये नहीं प्रूव करना होता है दैट ही हैज़ कमिटेड द क्राइम, बट ऑन द अदर हैंड डिफेंस को ये प्रूव करना पड़ता है कि एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ क्राइम दैट पर्टिकुलर गर्ल गेव द कंसेंट और शी विलिंगली पार्टिसिपेटेड इन द सेक्शुअल एक्ट। अगर वो प्रूव नहीं कर पाता है देन दैट पर्सन विल बी अंडर द प्रोसेस व्हाट वी कॉल्ड person will be convicted, and the burden of proof lies on the prosecution in all criminal cases except in rape cases where the burden of proof lies on the defense, that you have to prove that the act which was committed was a consensual matter. Section 45. Now this section 45 is very important because of the people you are studying, mostly the forensic science people, because the expert opinion is all the things which is based, your forensic science is based. Now opinion, something which is called an opinion does not have place in the criminal law in our country. Opinion, किसी को अपना opinion देने का कोई भी आज़ादी नहीं है क्रिमिनल केस में। क्यों नहीं है? क्योंकि हर कोई अपना ओपिनियन दे सकता है। तो ओपिनियन यहाँ पे सेक्शन 45 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है किस किस पीस पे आप किसी को एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं। तो वहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, ओपिनियन अपॉन दैट पर्सन स्पेशली किल्ड इन फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट और किसी पर्टिकुलर फैक्ट पे। बट दीज आर फैक्ट जो भी होगा इन बेसिस पे होगा। तो अगर किसी कोर्ट को फॉरेन लॉ के बारे में कोई जानकारी चाहिए जिसको कोर्ट नहीं जानता है, तो किसी पर्सन को देश से बुला सकता है उस मैटर पे कोर्ट में गवाही देने के लिए। वैसे ही जैसे हम लोगों ने बहुत सारा
देखा है फॉरेंसिक टूल्स एंड टेक्निक्स जहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है फॉर गिविंग इन सपोर्ट ऑफ एविडेंस कि क्या ये हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता है, क्या आपने जो रिपोर्ट दिया है वो सही दिया है, नहीं दिया है। टू नेम अ फ्यू, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए बैलिस्टिक्स, साइबर फॉरेंसिक्स, ये सारा चीज़ जो है ये इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन पे बेस्ड होता है। तो सबसे पहले एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है, तो और उसका मानना क्या होता है। अगर कोई भी ओपिनियन बनाना हो कोर्ट को किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे जिस पे कोर्ट को रीजनेबल नॉलेज नहीं है, तो क्या करेगा, किसी भी पर्सन को एज एन एक्सपर्ट को बुलाएगा कोर्ट में। नाउ हु विल बी एन एक्सपर्ट? एक्सपर्ट के लिए ज़रूरी डेफिनेशन ये है कि वो पर्सन जो उस बारे में पढ़ा है और रीजनेबली उसी चीज़ में उसका एक्सपीरियंस भी हो। एक्सपीरियंस होने का मतलब कि समझिए कि आपने लॉ अभी पढ़ा, क्या कहते हैं, फॉरेंसिक साइंस पढ़ा और उसके बाद आप सरकारी नौकरी में लग गए किसी बैंक में, और 10 साल बाद क्या आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाया जा सकता है? और एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें आपने फॉरेंसिक साइंस पढ़ा और उसके बाद आपने उसमें एमएससी किया, पीएचडी किया और फिर फॉरेंसिक लैब में काम करने लगे, और 10 साल बाद आपको आप भी एक्सपर्ट की तरह कहीं जा सकते हैं, बिकॉज यू हैव सब्सटेंशियल नॉलेज ऑफ फॉरेंसिक लॉ एंड ऑल्सो यू हैव स्टडीड द रिलेवेंट things related to forensic law, and also you have a career in the forensic law and you are dealing with the forensic things all around from the last 10 years, 15 years, as the case may be. But a person who has joined bank after reading forensic science for 3 years may not be called an expert because he may not have the reasonable experience. So, the expert is the person who has a relevant part of study and also he has particularly worked in the field of same area of his education and has granted certain expertise in that field will be called as an expert. So now when we talk about expert, such experts are asked to come and appear before the court and also say to the court about the relevant questions what the court has for them. So now there can be two things. One is the expert रिपोर्ट विच इज़ कमिंग अंडर सेक्शन 293। उसमें रिपोर्ट मांगा जाता है, आपका बैलिस्टिक रिपोर्ट है, बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गया, बैलिस्टिक रिपोर्ट को देख को आप ओपिनियन बना सकते हैं, हाँ बैलिस्टिक रिपोर्ट में ऐसा बोलता है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम ओपिनियन बना लिया और उसको किसी को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हम क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए किसी को बुलाते हैं। नाउ व्हेन वी डू हैव द रिपोर्ट, द कोर्ट कैन रिलाई ऑन द रिपोर्ट। कोर्ट सेक्शन 293 ऑफ सीआरपीसी के भरोसे पे वो रिपोर्ट देख के बिलीव कर सकती है और उसको मान भी सकती है। लेकिन अगर कोई डिफेंस ये बोले कि आई वॉन्ट टू क्रॉस एग्जामिन दैट पर्सन एंड दैट पर्सन हैज़ टू बी कॉल्ड इन द कोर्ट, अगर वो उस आदमी को हम कोर्ट में बुलाते हैं तो वो एग्जामिनेशन चीफ देता है और उसके बाद उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। कोर्ट का बुलाने का जो प्रावधान दिया हुआ है वो सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है, ऑल्सो फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन इन चीफ, एंड ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड द री एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड। नाउ सेक्शन 45 इज ओनली बेसिस ऑफ द ओपिनियन। ना ओपिनियन जो भी आके जो एक्सपर्ट है वो अपना जो भी एक्सपर्ट का नॉलेज है वो नॉलेज आके उसको दिया, बट नॉलेज देने के बाद इज दैट पर्टिकुलर थिंग बाइंडिंग ऑन द कोर्ट? क्या कोर्ट को मानना ही पड़ेगा जो वो एक्सपर्ट दिया है, बोला है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोर्ट के पास ये ऑप्शन होता है कि एक्सपर्ट अगर किसी विषय पे कोई चीज़ बोला है तो वो कोर्ट के पास ये पूरा पावर है कि उसको मान भी सकता है या नहीं भी मान सकता है और अपने से किसी दूसरा डिसीजन भी दे सकता है। दूसरा, क्या अगर आई विटनेस और साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स से आया हुआ रिजल्ट दूसरा है, जैसे अगर फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से या फॉरेंसिक टूल्स टेक्निक्स के हिसाब से आपको लगता है कि ए ने ये मर्डर किया, हर साइंस उसको बोल रहा है कि ए ने मर्डर किया है, बट दूसरे तरफ एक बंदा है सी जो कि बोल रहा है कि नहीं सर ए ने मर्डर नहीं किया है लेकिन बी ने किया है, किसका हम मानेंगे कि ये मर्डर किया है? यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे सुपरसीड करेगा द ऑक्यूलर एविडेंस। आई विटनेस जो होगा वो सुपरसीड करता है किसी भी साइंटिफिक एविडेंसेस को। नाउ देर कैन बी अ लॉट ऑफ डिबेट अबाउट इट कि क्यों, क्या, कैसे, लेकिन जो लॉ है वो यही है कि अगर कोर्ट चाहे तो किसी भी एविडेंस को, साइंटिफिक एविडेंस को नज़रअंदाज कर सकता है
on giving proper reasons to why is it doing so, and also a person who is a eyewitness has a better credibility of the things which has been said by the eyewitness as compared to the person और एज़ कम्पेयर टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे भी एक्सपर्ट को माना नहीं जाता है. अगर आप देखेंगे एक्सपर्ट एविडेंसेस में बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसको अभी भी कोर्ट से अमान्य किया गया है. नार्को एनालिसिस, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, ये सब पॉलीग्राफ, इन लोगों ने पहले ही इसको नकार दिया है कि दीज आर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज थिंग्स कैन नॉट बी यूज. तो अगर इनको यूज़ को मना कर दिया है कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद भी अगर आप इसको यूज़ करके कुछ भी एविडेंसेस ला रहे हैं तो वो एविडेंसेस ऐसे ही अमान्य हो जाएंगे. और एविडेंसेस अगर उनको बनाया एविडेंसेस अगर आप डिराइव करते हैं उन लोग उस सब चीज़ को किसी के बॉडी में डाल के, तो भी एविडेंसेस जो एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे वो अमान्य होंगे. सेक्शन 47, ये सेक्शन 47 सेक्शन 45 से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हैंड राइटिंग यहाँ पे बोलता है इफ़ यू आर एक्वेंटेड विद दैट हैंड राइटिंग. एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग मतलब कि अगर आप उस चीज़ हैंड राइटिंग से पहचान सकते हैं, देख के पहचान सकते हैं दैट पर्टिकुलर हैंड राइटिंग बिलोंग्स टू समबडी इन पर्टिकुलर, तब ये सेक्शन मान्य होगा, नहीं तो ये सेक्शन मान्य नहीं होगा. जैसे कि अगर मेरे को पता है कि ये राइटिंग जो है वो हो सकता है कि रोहन का है, और रोहन का राइटिंग को हम अगर पहचानते हैं क्योंकि हम रोहन का बहुत दिन से देख रहे हैं, हम उसका पेपर चेक करते हैं और हमें लगता है कि ये रोहन का राइटिंग है, देन आई कैन बी कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ सेक्शन 47 की पूछा जा सकता है मेरे से कि क्या ये हैंड राइटिंग रोहन का है या नहीं. अगर होगा या फिर हम उसको बोलते हैं दैट विल बी अ पार्ट ऑफ एन ओपिनियन ऑन द हैंड राइटिंग, दैट पर्टिकुलर हैंड राइटिंग इज ऑफ रोहन और नॉट. इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का बात करते हैं, आज के दिन पे जो भी एविडेंसेस है सारा एविडेंसेस आज के दिन में इलेक्ट्रॉनिक हो गया है. तो कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो वो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है. आजकल आपको नोट्स सारा इलेक्ट्रॉनिकली मिल रहा है. तो ये इलेक्ट्रॉनिक का जो भी परिभाषा है एविडेंसेस का, आप लोगों को पहले डॉक्यूमेंट मिलता था, डॉक्यूमेंट को अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट मिलता है, जैसे आपको ई कार्ड एडमिट कार्ड पहले आपको घर में आता था, एडमिट कार्ड घर में आने के बाद वो आप उसको लेके एग्ज़ाम देने जाते थे, बट नाउ द एडमिट कार्ड हैज़ टू बी डाउनलोडेड, सो दैट इज़ कॉल्ड द ई एडमिट कार्ड. So e-evidences is also a thing which has to be looked into because everything has been now being electronic. So most of the things which we see is available in the document is also available on electronic form, and they have the same form of admissibility as in case of a document is admissible. देखते होंगे आप अगर कोई कोई भी अगर डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे नीचे एक लिखा रह सकता है कि दिस इज़ वैलिड फॉर दिस पर्पसेस, दिस इज़ वैलिड फॉर दिस पर्पसेस ओनली. तो अगर क्या कहते हैं अगर आप रिज़ल्ट देखिएगा, सीबीएसई का जो रिज़ल्ट आता है, सीबीएसई का रिज़ल्ट भी ऑनलाइन आता है जो कि बाद में आपका हार्ड कॉपी आता है, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि दिस इज़ एन this is a document which is made by CBSE, though the CBSE is not responsible for the errors that may have crept in. Now दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, क्योंकि एविडेंस है कि आप वो पास किए हैं और उसके बेसिस पे आप बहुत जगह अप्लाई भी करते हैं, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू हैव टू हैव द ओरिजिनल रिजल्ट विच इज़ गिवन बाय द CBSE. सो अगर आपको ऑनलाइन कोई भी चीज़ मिलता भी है दैट इज़ ओनली एन इंडिकेटिव, और उसके बाद आपको वो जो ओरिजिनल होगा वो उस चीज़ को देखना पड़ेगा. अगर आप देखते हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनता है, जो भी वो देता है दे साइन इट इलेक्ट्रॉनिकली, कोई सा पेन से साइन नहीं होता है, और वहाँ पे लिखा होता है दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड डॉक्यूमेंट. तो क्या उसका ऑथेंटिसिटी कम हो जाता है? नहीं, वो आपका ई फॉर्म है. और आज के दिन पे कोई भी एविडेंसेस को जो हम डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, तो सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एडमिसिबल फॉर्म ऑफ एविडेंसेस, चाहे वो कंप्यूटर में सेव किया हो, मोबाइल में सेव किया हुआ डेटा हो, या फिर कहीं पे भी
आपके फ्लैश ड्राइव में, आपके यूएसबी पोर्ट में, कहीं पे भी स्टोरेज डिवाइस में जो भी लिखा हुआ होगा वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हो सकता है, बशर्ते दे आर नॉट tendered or they have not been subject to some particularly tampering नहीं किया गया है. अगर tampering नहीं किया गया है, that is a form of electronic evidence. Coming to examination in chief, we have already dealt about examination in chief. जो पार्टी जिस पार्टी को बुलाता है उसको वो कोर्ट में बोलता है कि आप इसके बारे में बताइए, और अगर वो सारा चीज़ बताता है दैट इज़ नोटेड डाउन इन द कोर्ट बाय द जज, दैट इज़ कॉल्ड द एग्जामिनेशन इन चीफ. ऑन द अदर हैंड, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जो पर्सन एग्जामिनेशन इन चीफ करता है, अपोजिट पार्टी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, और क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत सारा सवाल उससे पूछा जा सकता है पर्टेनिंग टू व्हाट ही हैज सेड इन द एग्जामिनेशन इन चीफ. Now coming to leading question cannot be asked during examination in chief, but leading question can be asked during cross examination. क्यों नहीं किया जा सकता है एग्जामिनेशन इन चीफ? एग्जामिनेशन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जा सकता है? लीडिंग क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस जिसमें आप एक सजेशन देते हैं. जैसे अगर आपसे पूछा जाए आपका नाम रोहित सिंह है, तो नाउ दिस इज अ सजेस्टिव क्वेश्चन, आपको हाँ या ना में जवाब देना है. तो अगर हम कोई भी चीज़ रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं कोर्ट का, तो हम लीडिंग क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन ये लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि हम उस चीज़ को लाना चाहते हैं कोर्ट के रिकॉर्ड पे. तो इसलिए हम एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं. लेकिन क्या हम लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं? हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन में हम लोग लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसमें अगर हम लोगों ने सवाल लेता है क्या आपका नाम रोहित सिंह है, तो आपको हाँ या ना में जवाब देना है, एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन बट नॉट इन एग्जामिनेशन इन चीफ. कमिंग टू री एग्जामिनेशन वो होता है जहाँ पे एक बार एग्जामिनेशन इन चीफ होने के बाद और उस पर्टिकुलर बंदे का या बंदी का क्रॉस एग्जामिनेशन के होने के बाद वो वापस चला गया. सपोज दैट पर्सन इज वांटेड बैक इन द केस फॉर री एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन इन चीफ, दैट हैज़ टू बी परमिशन हैज़ टू बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट. अगर परमिशन ग्रांट करता है कोर्ट, तभी वो री एग्जामिनेशन के लिए आ सकता है, और अगर कोर्ट परमिशन नहीं देता है तो वो री एग्जामिनेशन के लिए नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब पहली बार उसको आना है दैट इज़ अ राइट, बट सेकेंड बार जब आप उसको स्पेशल परमिशन के लिए बुला रहे हैं, दैट इज़ नॉट राइट, बट इट इज़ ओनली डिपेंड्स अपॉन द परमिशन फ्रॉम द कोर्ट. अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ इस केस में इसका ज़रूरत है, कुछ बाकी रह गया है, कुछ पूछना बाकी रह गया है, कुछ पूछने के नहीं पूछने से ये केस को अल्टीरियरली कुछ प्रभाव पड़ेगा, तब वहाँ के लिए हम री एग्जामिनेशन के लिए उसको बुला सकते हैं, बट इन नॉट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. दैट इज़ अ स्पेशल राइट विच हैज़ बीन बिस्टोर्ड अपॉन बाय द कोर्ट, एंड इफ़ द कोर्ट परमिट्स, री एग्जामिनेशन के लिए भी किसी को हम बुला सकते हैं. रीडिंग क्वेश्चन आपको बता दिए. नाउ mostly I have covered the Indian evidence law. I will come again with some the other topic of your criminal law. Thank you.